میرے غریبا کے نوجوانوں، دوستوں، بزرگوں، میرا سیاست میں آنے کا جو بنیادی جو مقصد تھا وہ اس حلقے کے آزاد کشمیر کے اور خاص طور کے اوپر حلقہ غربی باغ کے غریب، پسماندہ اور پسے ہوئے طبقے کو انصاف دلانا اور ان کے ساتھ ان کے حقوق کی جنگ لڑنا، یہ میرا بنیادی مقصد جو لے کر میں پاکستان میں اور پھر آزاد کشمیر میں اپنے حلقے کی سیاست کے اندر میں اترا تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں اپنا مقصد جو میرا ایک ویژن اور جو میرا پرپس ہے، اگر میں اس کے اندر پورا میں نہیں اتر سکتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میرے سے پہلے جو لوگ اس آزاد کشمیر کی سیاست میں، غربی باغ کی سیاست کے اندر آلریڈی نام نہاد لیڈرز یہاں پر موجود ہیں، جنہوں نے یہاں پچھلے 7 دہائیوں سے رول کیا ہے اور سسٹم کو برباد کیا، تو پھر اس کا مطلب ہے میرے اور ان میں کوئی بنیادی مقصد نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا اور میری جماعت کا جو بنیادی جو مقصد ہے وہ تبدیلی کا ہے، اور اس نظام کو، اس فرسودہ، اس گلے سڑے نظام کے خلاف جہاد کرنے کا جو ایک منصوبہ، ایک پلان اور ایک ویژن ہے۔ میں نے گزشتہ کئی سالوں میں عملی سیاست کے اندر میں نے کئی عوامی ایشو کے اوپر میں نے بڑا بلنٹلی اور میں نے بڑا اوپنلی اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، اور میں نے ان ایشوز کو ہر فورم کے اوپر بلند کیا، چاہے وہ حلقہ غربی باغ کے ایشوز ہوں، چاہے وہ آزاد کشمیر کے ایشوز ہوں، میں نے کھل کے اوپر اس کے اوپر گفتگو کی ہے۔ میں نے گزشتہ دنوں میں آزاد کشمیر کے اندر بالعموم اور بالخصوص حلقہ غربی باغ تحصیل ڈھیرکوٹ کے اندر جو بڑھتی ہوئی منشیات فروشی کا جو ایک کالا دھندا ہے، میں نے اس کے اوپر کھل کر اپنی رائے کا اظہار کیا۔ مجھے خوشی ہے کہ اس معاشرے کے سلجھے ہوئے اور پڑھے لکھے طبقے نے اس کے اندر بڑے مثبت رد عمل کا اظہار کیا، اوورسیز کمیونٹی نے بڑا زبردست اور مثبت رد عمل کا اظہار کیا، اور غربی باغ کا جو پڑھا لکھا نوجوان جو طبقہ ہے اس نے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر آواز حق بلند کی ہے۔ اور میں ان تمام دوستوں کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں جن کا مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ تعلق ہے، لیکن اپنی سیاسی وابستگیوں سے بالا تر ہو کر انہوں نے اس کاز کی حمایت کی اور انہوں نے اس مشن کی حمایت کی۔ میں آپ سب لوگوں کا دل سے میں شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ اتنا کھل کر آپ اس کے اوپر بولے ہیں۔ میں نے جب اس مشن کے اوپر اور میں نے اس دھندے کے خلاف جب میں نے ایک مہم کا آغاز کیا تو اس کا ظاہر ہے مجھے اس کا اندازہ تھا کہ اس کے کانسیکوینسز بھی ہوں گے، اور اس کے اوپر میں نے دیکھا کہ مجھے ایک لیگل نوٹس جو سوشل میڈیا کے ذریعے مجھے دیکھنے کو ملا اور مجھے پتہ لگا، میرے ساتھ مجھے سرو کیا گیا۔ اس لیگل نوٹس میں مجھے فوجداری مقدمات کی 50 لاکھ روپے ہرجانے کا دعویٰ کیا گیا اور مجھے فوجداری مقدمات کی دھمکیاں دی گئیں۔ ظاہر ہے مجھے اس بات کا اندازہ تو تھا ہی کہ یہ تو ہونا ہے۔ میں ایک چیز آپ کو غربی باغ کے لوگوں میں واضح کرنا چاہتا ہوں، میری لڑائی کسی فرد واحد کے ساتھ نہیں ہے، میری لڑائی بنیادی طور کے اوپر اس نظام کے خلاف ہے۔ میری جو لڑائی ہے وہ بنیادی طور کے اوپر اس کرپٹ، فرسودہ اور یہ جو بیکار، یہ جس نے اس نظام، جس نے اس کرپٹ مافیا کو، اور آج اس جو اب ہمارا جو جس کی وجہ سے آج اس پورے حلقے کے اندر نشے کی یہ لعنت کا جو کاروبار یہاں تک پہنچا ہے، میرے اس نظام کے خلاف میری جدوجہد ہے، اور میں نے اپنی سیاست کا آغاز اسی جدوجہد کو لے کر کیا تھا۔ اور میں یہ آپ کو آج سے بڑے واضح طریقے سے کہنا چاہتا ہوں، میں ان چھوٹی موٹی دھمکیوں سے ڈرنے والا آدمی نہیں ہوں، میں ایک ٹرینڈ پولیٹیکل کارکن ہوں۔ میں نے پچھلے 8-10 سال کے اندر پاکستان کے بڑے بڑے سیاسی مافیاز کے ساتھ سڑکوں کے اوپر جدوجہد کیا، عمران خان کے ساتھ۔ میں ایک ٹرینڈ پولیٹیکل کارکن ہوں، اور میں کسی ایک حلقے کے اندر، تحصیل لیول کے اندر اور وارڈ لیول کے ان یونین کونسل لیول کے مافیاز کے خلاف میں کبھی کسی صورت میں نہیں جھکوں گا، اور یہ میں بڑے واضح طریقے سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرا یہ مشن ہر صورت میں جاری رہے گا۔ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ کتنے لوگ کھڑے ہیں، لیکن میں جس وقت تک میں یہ سمجھوں گا کہ میں حق پر ہوں، میں سچ پر ہوں، اور میں غربی باغ کے اور اپنے حلقے کے ان نوجوانوں کی میں آواز بن رہا ہوں، اور ان نوجوانوں کو جن کو وہ میٹرک گوئنگ اسکول بچے جن کو اس نشے کی اس لعنت کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، اگر میں ان کی آواز نہیں بن سکتا تو میرا اس سیاست میں رہنے کا مجھے کوئی حق نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس لڑائی کو لے کر میں آخری حد تک جاؤں گا انشاءاللہ۔ میرا بنیادی مقصد کسی فرد واحد کے اوپر کیچڑ اچھالنا ہرگز نہیں ہے، بلکہ میرا مقصد اس نظام کا، اس سسٹم کی اصلاح کرنے کا ہے۔ میں نے جن کرداروں کی اوپر سے جب پردہ اٹھانے کی بات کی، میں نے جن کرداروں کو بے نقاب کیا اپنے انٹرویو کے اندر، میں اس کے پیچھے میرے پاس بھرپور قسم کے میرے پاس ثبوت موجود ہیں۔ میں ان ثبوتوں کو
मुतलका अदालतों के अंदर, मैं मुतलका फोरम्स के अंदर, मैं आज ही आज़ाद कश्मीर के पास और तमाम वो फोरम, लीगल फोरम जहां पर इनको मैं पेश कर इन किरदारों को बेनकाब करता हूं, मैं जरूर लेकर जाऊंगा। मैं ये भी आज ही कहना चाहता हूं कि मेरे पास इन सबूतों के साथ साथ मेरे साथ वो लोग मेरे पास दस्तयाब हैं जिन्होंने इस निजाम को, इस निजाम ने जिनने इनको लूटा है, लाखों लाखों रुपया इनसे वसूली ली है, वो लोग मेरे साथ गवाही देने के लिए तैयार हैं। वो लोग फिजिकली हर फोरम के ऊपर इनको बेनकाब करने के लिए तैयार हैं। दर्जनों हाँ लोगों ने आज मुझे फोन पर राब्ते करके मुझे आज इसके ऊपर मेरे साथ खड़े होने के लिए मुझे साथ वादा किया, और वो लोग खड़े होंगे। कई लोग तो मेरे बहुत ही अपने करीबी लोग हैं, और जो जिस मुकदमे की मैंने उस दिन भी मैंने बात की थी, वो तो मेरा इंतहाई करीबी है, जिसके ऊपर मेरे लीगल नोटिस के ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं की गई और उसके ऊपर बात भी नहीं की गई, उसके ऊपर चैलेंज भी नहीं किया गया, चूंकि वो जो केस था वो हकीकत पर मबनी केस था। मैं एक और चीज आपको जो कहना चाहता हूं वो ये कि ये वो ढेर सारे वो मुकदमात हैं, ये वो केसेस हैं, वो सारा कुछ है जिसके ऊपर मेरे पास ठोस सबूत मौजूद है। आज आजाद कश्मीर के साथ मैंने राब्ता किया है, मैं तमाम मुतल्लिका फोरम्स के ऊपर इंशाल्लाह इसको लेकर जाऊंगा और इनके इस करप्शन को, इस चोरी को, इस सिस्टम को, इस काले धंधे को इंशाल्लाह मैं बेनकाब करूंगा और इंशाल्लाह इस निजाम की दुरुस्ती तक मैं किसी सुर चैन तक नहीं बैठूंगा। यूनियन काउंसिल माखेला के गांव अपर रियाला से एक नौजवान खातून साइमा, उसको उसके देवर ने आधी रात को गोलियां मारी उसको और उसको मर्डर करने की उसकी पूरी कोशिश की। उसके बाद हुआ क्या, मुल्जम फरार हो गया, आज तक मुल्जम नहीं मिल सका, लेकिन साइमा सारी जिंदगी के लिए माजूर हो गई। साइमा आज अपने अरबाब इख्तियार से रोज सवाल पूछती होगी उसका क्या कसूर था कि कानून उसके लिए मुकम्मल तौर के ऊपर आज 1.5 साल हो गया खामोश है और उसको आज तक साइमा को इंसाफ नहीं मिल सका। इसी तरीके से कोहाला में यूनियन काउंसिल हेल्थ रूम के कोहाला में पुलिस चौकी के जो कुक फाजल चाचा पिछले साल छुट्टी के ऊपर घर गए, घर से फोन करके बुलाया गया कि आप वापस काम पे आए, आपके लिए गाड़ी मुंतजर है, आप बैठे, आपको आना है। गाड़ी में बिठाकर उनको वापस बुलाया गया और उसके बाद वो 2 दिन वो गायब है। तीसरे दिन जंगल से उनकी लटकती हुई फांसी फंदेशुदा लाश उनको मिली। आज तक उसका सुराग नहीं मिल सका कि उसको किसने मारा। हाँ, उनका कोई बेटा नहीं था, जायदाद बहुत बड़ी थी, कुछ भी कारण हो सकता है, लेकिन आज तक पुलिस उसका नहीं, आसान ओपन एंड शट केस था, उसको सिर्फ उसकी सीडीआर निकालकर चेक रही थी कि किसने उनको घर से उठाकर बुलाया और किसने उनको गाड़ी में बैठाकर वो किया, और सिर्फ सीडीआर से दोनों साइड की सीडीआर मालूम करके इस केस को निपटाया जा सकता था। लेकिन आज भी चूंकि दोनों साइड के इन दोनों केसेस के जो मुल्जमान होते हैं ताकतवर हैं कि उनके सामने इदारे, उनके सामने थाना और उनके सामने पुलिस बेबस है। गरीबी बाग के लोगों को हमारे लिए सोचने का मकाम है। देखिए, मैं खुद भी इस हल्के का रिहायशी हूं और आप सब लोग जानते हैं कि आज से 3 साल पहले इस हल्के के अंदर और इस तहसील धीरकोट के अंदर इस मंशियात के हवाले से कितनी हद तक लोग ग्रो या कितने हद तक इसमें लोग मुलव्वस थे या कितना ये कारोबार कितना ऊपर था, बहुत नीचे था। हार्डली कोई इसके हवाले से कई लोगों के अंदर वो था कि ये एग्जिस्ट भी करता है। लेकिन पिछले 3 साल के अंदर जिस तेजी के साथ ये धंधा ऊपर गया और मैं समझता हूं कि 500 गुना से ज्यादा ये इसने स्पीड पकड़ी और ऊपर गया। इसमें एक बहुत बड़ा ग्रोह नीचे से लेके ऊपर तक इदारों के अंदर से भी हर तरह से लोग इसके अंदर मुलव्वस हैं। पूरा हमारे यहां रावलपिंडी से पीरवदाई से लेकर वहां धीरकोट रंगले तक का एक पूरा नेटवर्क इसके अंदर काम कर रहा है और हर स्टेक होल्डर इसके अंदर अपना हिस्सा डाल रहा है। और मैं ये समझता हूं ये मुनज़्ज़म किस्म का ग्रोह, ये मिलकर इन्होंने इस पूरे इसको एक इंडस्ट्री बनाया है। और मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से पिछले सिर्फ 3-4 अगर 6 महीने की मैं बात करूं तो यहां 5-5, 600 किलो हीरोइन यहां पे चरस बरामद की गई। लेकिन क्या हुआ, डाली कितनी गई चरस हीरोइन, वो सिर्फ और सिर्फ जब दिखाई गई 300 ग्राम दिखाई गई। 300 ग्राम दिखाने का मतलब यह 4/3 का चलान उसके ऊपर हो गया। उसका मतलब क्या, 1 महीने के अंदर उसकी अदालत से उसकी रिहाई हो गई। इसी तरीके से जब कभी यहां के ऊपर अगर मैं ये समझता हूं कि अगर जो हमारा ये जिस तरह से पकड़े भी गए,
जिस तरह से लोग कहते हैं, हमारे एसएचओ थाना हजरात के लोग कहते हैं कि जनाबे वाला हमने मुल्जिमों को पकड़ा, अगर पकड़ने के बाद अगर वही जो चरस और शराबें एक्चुअली अगर दिखाई जाती, फॉर एग्जांपल अगर 5 किलो चरस पकड़ी और 5 किलो चरस अगर इनके ऊपर डाली जाती और एफआईआर में शो की जाती, तो उसके ऊपर तो पाकिस्तान के कानून के तहत उसको तो सजाए मौत उसके ऊपर बनती है। आज तक इस हल्के के अंदर, तहसील के अंदर जितने बड़े बड़े शराबों के और चरसों के ग्रोह यहां पकड़े गए, कभी किसी को सीरियस किस्म की सजा नहीं मिली, कभी संजीदा किस्म का यहां के ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, किसी को सजा नहीं दी गई। उसकी वजह से आज तक ये ग्रोह और ये नशा और ये सारा सिस्टम ऊपर से ऊपर गया, नीचे नहीं आया। अगर किसी को वाकई तौर के ऊपर अगर सजा मिलती तो मैं समझता हूं आज नताइज मुख्तलिफ होते। इसमें पूरा ये गैंग, इसका मुलव्वस होना और इस पूरे स्टेक होल्डर का मिलकर काम करना आज इसी तरह से दिखाई देता है जिस तरह से आप रंगले में, धीरकोट के अंदर, मल्लोट के अंदर, रिंगोली के अंदर और पूरी जिनको चमेटी के अंदर, लोअर बेल्ट के अंदर, हर तरफ आपको आज हर गांव के अंदर ये नशे की लानत आपको हर तरफ दिखाई देती है। आज तहसील धीरकोट का स्कूल गोइंग बच्चा इसके अंदर इन्वॉल्व हो चुका है। इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल कौन है? मैं हूं, आप सब लोग हैं और हमारे इस माशरे का हर पढ़ा लिखा तबका इसके अंदर, जो हम सब लोग इसके रिस्पॉन्सिबल हैं। और हम सब, अगर हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली तो कौन लेगा? मुझे बताएं। ये जो हमारी जनरेशन तबाह से तबाह होती जा रही है, बर्बाद होती जा रही है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आखिर किसी को तो लेनी पड़ेगी। मैं ये समझता हूं कि गरीब बाग का तमाम बादशाह तबका इसका नोटिस ले, और ये अकेले तोसी वबासी की लड़ाई नहीं है, ये किसी जमात की लड़ाई नहीं है, ये हम सबकी मुश्तरका तौर के ऊपर सियासी जमातों और एफिलिएशन से पाक होकर हम सबकी लड़ी और हम सबको मिलकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी इंशाल्लाह। आखिर में मैं आप दोस्तों से कहना चाहता हूं कि लोगों, मैं एक आम मिडिल क्लास वर्कर हूं, पॉलिटिकल कारकुन हूं, मैं कोई इंटरनेशनल लीडर नहीं हूं। मैंने जिन इश्यूज के ऊपर आज आपसे बात की और मैं हमेशा करता भी आया हूं, मुझे पता है कि इसके बहुत कॉन्सिक्वेंसेस हैं, मुझे पता है कि इसके एक स्ट्रगल है, एक मुश्किल स्ट्रगल है, इसके अंदर बहुत सारे हार्डशिप्स आगे आएंगे, मुझे उसका अच्छी तरह अंदाजा है। लेकिन मैं उन तमाम रुकावटों को अबूर करने के लिए और मैं उन तमाम चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए तैयार हूं, और मुझे उसकी जो भी कीमत अदा करनी पड़ी, मैं इंशाल्लाह उसको अदा करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। लेकिन मैं आप सबसे यह सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर जिन इश्यूज के ऊपर जो मैंने बात की आपके सामने, अगर ये वाकई तौर के ऊपर आपको लगता है कि वाकई ये सच है और ये हमारे माशरे को बर्बाद और खोखला कर रहा है, ये हमारे माशरे को पस्ती की तरफ लेके जा रहा है, ये हमारे इलाके को बर्बादी की तरफ लेके जा रहा है, हमारे हल्के को बर्बादी की तरफ लेके जा रहा है, तो लोगों आपके लिए सोचने का मकाम है। आखिर कब तक हम अपने माशरे को बर्बाद करने के लिए हम खामोश तमाशा बनकर बैठे रहेंगे? मैं हम सबको दावत देता हूं कि किसी भी सियासी जमात की एफिलिएशन से बड़ाताक होकर आए, मिलकर इस माशरे में इस नशे से लानत की खिलाफ हम मजीद मिलकर जदोजहद करें। इस माशरे के अंदर, इस हल्के के अंदर जो हमारे अस्पतालों के जो बुरे हालात हैं, डिस्पेंसरी के जो बुरे हालात हैं, हमारे जो इस हल्के के अंदर जो हमारे लिंक रोड के बुरे हालात हैं, जो हमारे प्ले ग्राउंड हमारे पास नहीं है, जो हमारे तालीम को लेकर हम जितना पस्ती का शिकार हैं, इन सब बुराइयों के खिलाफ और इन तमाम इश्यूज के अगेंस्ट हम मिलकर जदोजहद करें, तभी हम सबकी कामयाबी का सफर शुरू होगा हकीकी मायनों के अंदर। और मैं ये समझता हूं हम एक नए सफर की तरफ रवाना हो सकते हैं और हमारी कामयाबी उसके ऊपर यकीनी है। मैं आप सबका एक बार फिर से मशकूर हूं दिल से कि आप सब लोगों ने इस पूरी कैंपेन में मेरा साथ दिया, और मैं आपसे वादा करता हूं इंशाअल्लाह कोई साथ दे ना दे, कोई पीछे खड़ा हो ना हो, मैं इंशाअल्लाह इन तमाम कोर इश्यूज के ऊपर मिलकर फ्रंट फुट के ऊपर इंशाअल्लाह साबित कदम रखकर इंशाअल्लाह ये मेरी तहरीक जारी रहेगी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया।